سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کی، جس نے کرم میں قائم تمام بنکرز مسمار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرم کے دونوں فری کین سے اسلحہ جمع کرنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کرم کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری سمیت عسکری حکام نے اس میں شرکت کی۔ دونوں فریق تمام اسلحہ جمع کریں گے۔ فری کین حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دونوں فری کین اسلحہ جمع کرنے کے لیے 15 دنوں میں لاہ عمل دیں گے۔ 1 فروری تک تمام اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھول دیا جائے گا۔ ضلع کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، آئی جی اور صوبائی اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں کرم کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولنے کا سیکیورٹی میکانزم ترتیب دیا گیا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہنگامی بنیادوں پر وفاقی اور صوبائی حکومت خصوصی ایئر سروس شروع کرے گی۔ علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا۔ اجلاس میں تیرا اور جانی خیل میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ علاقوں میں عارضی نقل مکانی کروانے پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے وفاقی حکومت سے مدد مانگ لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ امن کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ایف سی خیبر پختونخوا میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایات دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت قانون معاملے کو حل کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی۔ مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت قانون معاملے کو حل کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس کے موقف سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست کی کہ آئین اور قانون کے مطابق فوری طور پر عملی اقدامات کریں۔ امید ہے کہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئینی طور پر عملی اقدام ہوگا۔ وزیر اعظم نے قابل اعتماد انداز میں بات کی۔ انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے کے بعد اب ایکٹ بن چکا ہے۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے متفقہ طور پر جو موقف اختیار کیا ہے، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر حکومت اب کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ ہمارے اس موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی۔ اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں۔ انہوں نے جس اسپرٹ میں بات کی ہے اس پہ امید ہم رکھ رہے ہیں۔ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو جانے کے بعد اب وہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اگر صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہے تو ایک اعتراض ہو چکا اور اس کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق اسپیکر صاحب نے اصلاح کر کے جواب بھی دے دیا اور اس جواب پر صدر صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ انسانی اسمگلر عثمان ججہ کی سیالکوٹ جیل سے رہائی اور روپوشی کا معاملہ۔ ذرائع FIA کے مطابق ملزم عثمان ججہ کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ کشتی حادثے میں ملوث 10 دوسرے انسانی اسمگلرز کے نام بھی اسٹاپ لسٹ میں شامل۔ غفلت برتنے والے FIA SHO اور تفتیشی آفیسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ ذرائع FIA کے مطابق عثمان ججہ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم ہے۔ عثمان ججہ لڑائی جھگڑے کے کیس میں 16 دسمبر کو جیل سے رہا ہونے کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवैये का सामना करना पड़ा। ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत भी की। यूनान कश्ती हादसे में जाँबाहक 5 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई। दीगर की शिनाख्त का अमल जारी है। एथेंस में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना कश्ती हादसे के हवाले से यूनानी हुकाम से मुसलसल राबते में है। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और मंडी बाउद्दीन अजला के सबसे ज़्यादा अफराद इंसानी स्मगलर्स का शिकार होते हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुल्जिमान की मुतफरिक दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अलीमीन गंडापुर और दीगर की दरख्वास्तें खारिज की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। 4 मुल्जिमान मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, उमर नवीद सत्ती की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नाकाफ़ी हैं। अदालत ने फवाद चौधरी के मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम की जमानत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। बलोचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। अदालत ने पुलिस को मुल्जिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम इसहाक इससे पहले जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से इजलास हुआ। मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द तामीर मुकम्मल करने की उनकी जानिब से हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल फ्राहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम के तेज़ किया जाए। मौसम मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए नागुज़ीर है। इजलास में आसान कारोबार एक्ट 2024 के हवाले से तजावीज़ भी पेश की गई। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। तमाम बड़े और छोटे शहरों में अंडरपास के अतराफ़ और ओवर हेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने के अहकामात, ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। गली मोहल्लों के रूट्स पर गड्ढे नज़र नहीं आने चाहिए। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमाया इक़दाम किए जाएं। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास हुआ। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने इसमें शिरकत की और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुड्डी भी इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में अब तक की पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। इजलास के शुरका ने हुकूमत की जानिब से आयदा होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। शुरका का वफाकी हुकूमत की सूबों को यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार सामने आया। हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मजीद तेज़ करें। बिलावल भुट्टो की जानिब से शुरका को यह हिदायत दी गई और राब्ते तेज़ करें ताकि
CEC में मुस्बत नतीजा सामने रखा जा सके, ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सिंध गवर्नर हाउस में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी 7 जनवरी 2025 को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, बैन सूबा इत्तेहाद व वफूद के तबादलों पर तफसीली गुफ्तगू होगी। आवाम के लिए फलाह व बहबूद के इक़दामात, मुल्क के समाजी, माशी और माशरती मसाइल के हल के लिए गवर्नर्स के किरदार पर मुशावरत भी होगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ये कहते हैं कि अवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान में वसाइल नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम ऐसी कोशिशों के साथ हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी का मकसद ये है कि पाकिस्तान के आम आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। एक ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है जिसके समराज से आम पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद ना हो रहे हों। माशी हालात की बुनियादी तौर पर वजह यह है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ पावर है, एक्यूमुलेशन ऑफ वसाइल है, दौलत है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। पाकिस्तान में वसाइल की कमी का नहीं है मसला, मौजूदगी का मसला नहीं है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। हमारे तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और जो बच्चे स्कूल में भी हैं वहाँ पे भी लर्निंग पॉवर्टी का इशू है। एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 372 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं। नेवल चीफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 33 तलबा को मेडल से नवाजा। कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट शोबे-जात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन्स का फ़रोग़ काबिल तहसीन है। तकरीब में दोस्त ममालिक, मुल्की सिविल और मिलिट्री आला अफसरान और तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी का निकाह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इरशाद भट्टी का निकाह समारात से हुआ, जो टेलीविज़न पर मेज़बानी और मुतादिद ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। निकाह की तकरीब लाहौर में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार बैटर विराट कोहली जल्द भारत छोड़कर लंदन मुंतकिल हो जाएंगे। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि विराट कोहली जल्द भारत छोड़कर अहलिया अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ इंग्लैंड मुंतकिल हो रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन में प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं।